गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2 का। दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल टिश्यू के बारे में हम करने जा रहे हैं। कल हमने प्लांट टिश्यू के बारे में एनाटॉमी की थी, आज एनिमल्स की करेंगे। सो टिश्यू जो टर्म है आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एज द टिश्यू implies in the animal plant cell, plant same in the animals, that is when a cell of similar kind perform a particular specific function they are called tissue। ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, the attainment of particular organization in every system of the body। so structure of the cell vary according to function। so the tissue are the different and broadly into 4 type। tissue जो है एनिमल दे 4 किस्मां दे ने, उन्होंने ध्यान दे नाल इत्थों देखना है। एपीथेलियल, कनैक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो पहले असीं एपीथेलियल टिश्यू दे उत्ते गल करांगे। एपी दा मीनिंग हुंदा अपर लेयर, फ्री सरफेस। जो फ्री सरफेस ते हुंदा विच आइदर ऑन द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट and provide the covering or lining some part of the body। compactly packed cell ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ and having intercellular matrix very little। cell ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ intercellular matrix। there are 2 type of epithelial tissue, simple epithelial and compound। simple epithelial is the single layer of cell lining of the body cavity। ਸਿੰਪਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਿਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਕਟ ਐਂਡ ਟਿਊਬ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੇਅਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ 7 ਤਹਿਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੇਮਸ, ਕਿਊਬਾਈਡਲ, ਕਲਮਨਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਸੁਕੇਮਸ, ਸਕੇਰਮੈਟਿਕ ਫੋਮ। ਕਿਊਬਾਈਡਲ 'ਚ ਕਿਊਬਾਈਡਲ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਕਿਊਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲਮਨਰ 'ਚ ਲੋਂਗੇਟਡ ਸੈੱਲ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਕਲਮਨਰ ਸਿਲੀਏਟਡ ਵੀ। ਕਲਮਨਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਲਮਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਏਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, 'ਚ ਫਲੈਟਨ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਫਲੈਟਨ ਸੈੱਲ ਸਕੇਮਸ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਊਬਾਈਡ ਕਿਊਬ ਲਾਈਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਲਮਨਰ ਕਲਮਨਰ 'ਚ ਅਤੇ ਸਿਲੀਏਟਾ ਕਲਮਨਰ ਸਿਲੀਏਟਰ 'ਚ। ਸਕੇਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਫਲੈਟਨ ਸੈੱਲ ਆਫ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬੋਡੀ। they are found in the wall of the vessels and air sac of the lung and involved in function like diffusion। so squamous epithelium ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। cuboidal epithelium ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਡਕਟ ਆਫ ਗਲੈਂਡ, ਨੈਫਰੋਨ ਐਂਡ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਕਨਵੋਲੇਟਡ ਟਿਬਿਊਲ, PCT, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਜੋ ਹੈ composed of single layer and tall cell। they are nucleated on the at the base, free surface है microvilli। they are found in lining of stomach, intestine। यानी जो कलमनर एपीथीलियम कितने मिलेगी, इंटेस्टाइन ਤੇ ਸਟਮਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲੀਏਟਡ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿਲੀਏਟਡ ਜੋ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੋ ਆਰਗਨ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੌਂਕਿਊਲ ਐਂਡ ਫਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ। ਜੋ ਆਰਗਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੈਂਡਰਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਯੂਨੀਸੈਲਰ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਗਲੈਂਡਰਲ ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਲੇਟ ਸੈੱਲ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ, ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਸਲੈਬਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੋਡ ਆਫ ਪੋਰਿੰਗ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਕਟ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੜਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇਗੀ, ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਸੈਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਸੈਲਰ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸੈਲਰ, ਸਲੈਬਰੀ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਲੇਅਰ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਕਵਰਿੰਗ ਸਕਿਨ, ਇਹ 'ਚ ਡਰਾਈ ਕਵਰ ਸਕਿਨ ਦਾ
बकल कैविटी, फेरिंग्स लाइनिंग ऑफ सलैबरी गैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट। बाहरली जो लाइनिंग हार्ड होंगी थोड़ी है, इन्हूं कंपाउंड कहते हैं। उसदे बाद सैल दे विच एक सैल दूसरे नाल कनैक्टड होंदा विद द हैल्प ऑफ जंक्शन जो मटीरियल रेगूलेशन करांदा ने। दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शन। जे इहदे विच कोई गैप ना होवे, टाइट जंक्शन स्टॉप द सबसटांस लीकेज फ्रॉम टिशू, पूरी तरह लीकेज बंद कर दिंदा है। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म कीप नेबरिंग सैल टुगैदर, थोड़ा जोड़ के रखता है। गैप जंक्शन जिहड़ा उहदे विच थोड़े गैप होंदे ने ना, मटीरियल जिहड़ा नैक्सट जांदा है फॉर द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन मॉलीक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलीक्यूल। सो जो एपीथेलियल टिशू है तुसीं आराम दे नाल क्लीयर कर लिया होएगा, इहदे विच तुहानूं कोई भी डाउट नहीं है आई थिंक। जे कोई डाउट है तुसीं कमेंट कर सकते हो। चलिए नैक्सट शुरू करते हैं। तुसीं इह एग्जाम्पल जा जरूर करनी है, सिंपल कित्थे मिलदा, कंपाउंड कित्थे मिलदा, स्केमस, सिलिएटेड, ये सारे तुसीं याद करने ही एग्जाम्पल जो कंपीटेटिव चाहते हैं। उसदे बाद है कनैक्टिव टिशू। कनैक्टिव टिशू जो है अबंडेंट, सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। एंड कनैक्टिव टिशू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिंकेज करता है, सपोर्ट करता है, कनैक्शन का काम करता है बाकी ऑर्गन जे सिस्टम। रेज ये स्नोप कनैक्टिव टिशू सॉफ्ट तो आ जाता है, विच जिस तरह कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड। इन ऑल द कनैक्टिव टिशू एक्सेप्ट ब्लड नूं छड्ड के द सैल हैव्स फाइबरल प्रोटीन डैट इज कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन। ये ब्लड च नहीं होंगे। दीज फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी टू टिशू। These cell also secrete modified polysaccharide which accumulate between cell and fiber and act as matrix. The connective tissue are classified into three type, तीन तरह का है, loose connective tissue, dense connective tissue and specialized. So ये तुसी loose connective देख सकते हो, एरियोलर टिशू है, ये एडिपोज टिशू है जो लीवर च मिलता है। एरियोलर टिशू मैमरी ग्लैंड च मिलेगा। लूज कनैक्टिव टिशू की गल करिए, जिहड़ा लूज कनैक्टिव टिशू है हैव फाइबर लूजली अरेंज इन सैमी फ्लूइड ग्राउंड सबसटांस। जिस तरह एरियोलर टिशू है स्किन के नीचे, ओपन सर्व है सपोर्टिंग नैटवर्क फॉर एपीथेलियल, एपीथेलियल टिशू को सपोर्ट करता है। इट कंटेन माइक्रोफेज एंड ब्लास्ट सेल। एडिपर टिशू अनदर एग्जाम्पल है लूज सी एंड मेनली बिनेथ द स्किन जो उस फैट को स्टोर करता है। द सैल ऑफ दिस टिशू स्पैशलाइज स्टोर द फैट। फाइबरस एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉमनली पैक्ड डेंस कनैक्टिव टिशू। उसके बाद हम ज़्यादा पैकिंग की गल आ गई, जो पैकिंग ज़्यादा होगी तो उन्होंने डेंस कहांगे। लूज के पैकिंग घट है इसलिए इन्हू लूज कहते हैं। डेंस के पैकिंग ज़्यादा है इसलिए इन्हू डेंस कहते हैं। ओरीएंटेशन ऑफ फाइबर शो द रेगुलर और रेगुलर पैटर्न, डैट इज़ डेंस पैटर्न, रेगुलर और इरेगुलर। इन द डेंस रेगुलर पैटर्न द कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो विटमिन पैरेलल बंडल, एक बंडल बन जाते हैं। जिस तरह टेंडन which attaches the skeletal muscle to the bone and ligament which attach one bone to another are example of this tissue. जो dense irregular tissue है has fibroblast and many function, mostly collagen that are oriented differentially. So this tissue is present in the skin. So ये तुसी देख सकते हो dense, regular and irregular. Irregularly packing है, parallel arrangement है, ये irregular है। सो जो फाइबर कनैक्टिव टिशू एक लूज होंदा है, एक हार्ड होंदा है। बोन एंड ब्लड आर टाइप ऑफ स्पैशलाइज कनैक्टिव टिशू। इंट्रासैलर जो मटीरियल है कार्टिलेज दा इज सॉलिड पलाएबल डिस्टेंस कंप्रैशन दे वास्ते रजिस्ट होंदा है। सैल ऑफ दिस टिशू जिन्हों कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय देम। Most of the cartilage in the vertebrate embryo are specialized by bone and adult. Cartilage is present in the tip, nose, otter, ear zone between the bone of vertebral column, limbs and hand. जो थोड़ी अस्थि पिंजर कहते हैं, पिंजर जिन्होंने कहते हैं पतली हड्डी उन्होंने कार्टिलेज कहते हैं। उसके बाद बोन की गल करिए, बोन हार्ड है, नॉन प्लेबल है, क्रोन सबसटांस रिच इन द कैल्शियम साल्ट एंड कोलाजन फाइबर। इट्स मेन रोल इज प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फ्रेम टू बॉडी, फ्रेम बनाता है स्कैलेटन। द बोन सैल ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, तो जेडे ये सैल है कॉन्ड्रियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस दैट इज द लैक्यूने। बोन लिम्ब सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ लेग सर्व द वेट बेयरिंग फंक्शन। दे आल्सो इंटरेक्ट विद द स्किन मसल attach them about the movement. The bone marrow in the bone is site of production of the blood cell.
RBCs जो WBCs ने सारे इत्थे बनते ने। स्टैम सैल होंदे ने बोन दे विच जो बोन मैरो है। ब्लड जो है इट इज़ द फ्लूइड कनैक्टिंग टिशू। रैड ब्लड सैल वाइट ब्लड सैल प्लेटलैट्स होंदे ने। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है बॉडी का, ट्रांसपोर्ट करते हैं सबसटांस। चैप्टर नंबर 17 ते 18 च तुहानूं इहदी डिटेल मिल जाएगी। सो दोस्तों ये सीगा इहदे विच कार्टिलेज ते ओहदा बोन दा पहला डायग्राम कार्टिलेज दा। इहदे विच तुहानूं कॉन्ड्रोसाइट्स मिल जाणगे, कोलाजन फाइबर। उहदे बाद दूसरा डायग्राम बोन दा है, हार्डली अरेंज्ड है, टाइट जंक्शन है इहदे विच ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसिटिक एंड ओस्टियोक्लिटिक एक्टिविटी चलदी ने। ये तुसी मैं वीडियो पाया सी इहदे विच पैराथायरॉइड हारमोन दा, पैराथायरॉइड ग्लैंड दा, उहदे विच तुसी देख सकदे हो बोन दी किद्दां कैल्सीफिकेशन हुंदी है, किद्दां बोन लूज हुंदी है। उहदे बाद ब्लड RBC इज ओवल ई न्यूक्लिएटेड, वेरीअस फॉर्म ऑफ द WBC वाइट कलर, ये हीमोग्लोबिन हुंदा, प्लेटलैट्स तुहानूं पता है। सो ये बेसिक जिहा च दस्सिआ, बाकी डिटेल तुसी 17 ते 18 चैप्टर च पढ़ लोगे। उहदे बाद मैनूं उम्मीद है तुहानूं जो कनैक्टिव टिशू जो एपीथेलियल टिशू है फाइब्रस टिशू का क्लीयर हो गया होएगा। हुण असीं अगे गल करांगे नर्वस टिशू, मसल्स टिशू। मसल्स टिशू जो है मसल मेड ऑफ लॉन्ग सिलेंडर फाइबर अरेंज इन पैरेलल रे। दीज आर द कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर डैट इज़ द मायोफिब्रिल। मसल फाइबर जो है शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स एंड लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकंटैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेशन वे। यानी मसल्स जो है दी प्रॉपर्टी है अपनी लेंथ घट भी कर लेंदा, वध भी कर लेंदा, बट उसदी नॉर्मल जो शेप एंड साइज है सेम रहिंदा है। इन जनरल बॉडी जो मसल है काफ़ी एक्टिव रोल करते हैं। मसल तीन तरह के, स्कैलेटल, स्मूथ ते कार्डिकल। स्कैलेटल मसल जो है इट इज़ क्लोजली पैक मसल्स टू द बोन, बोन नाल बेसिकली ही अटैच होंदे ने। सो इहदे विच बाइसेप, स्ट्रिप्ड skeletal muscle, fiber are bundled together in parallel fashion. Sheath of the tough connective tissue encloses the several bundle of muscles. So muscles ਦਾ contraction ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮਸਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਵਰਵਿਊ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਸੈਪ ਟ੍ਰਾਈਸੈਪ ਦੇ ਮਸਲਸ ਜੋ ਨੇ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੈਲੇਟਲ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਲੇਟਲ ਮਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਪਡ ਮਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਪਡ ਮਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੂਥ ਮਸਲ, ਟੇਪਰ ਇਨ ਦਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਟੇਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਟਾਈਏਸ਼ਨ, ਸੈਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ them together and they are bundled together in connective tissue. The wall of the internal organs such as the blood vessel, stomach, intestine connect this type of muscle. तो ये जो है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी करते हैं, इन्हां दी मूवमेंट असी कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह स्टमक की मूवमेंट होगी, साडी इंटेस्टाइन की मूवमेंट होगी, विसलर ऑर्गन की मूवमेंट होगी, ये सारी स्मूथ मसल दी है। उसके बाद कार्डियक, ये सिर्फ हार्ट च मिलता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫਿਊਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਫ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ ਐਂਡ ਮੇਕ them sticky together. Communication junction जैसे intercellular disc of the some fusion point allow cell to contract. When one cell receive a signal to contract, neighboring are stimulated. So it is the auto stimulating. They have the synovarical node ਜਿਹਨੂੰ pacemaker ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो striation ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ jointed ਨੇ, junction ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ junction ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ junction ਬਣੇ ਨੇ but striation ਹੈ। So these are 3 type of muscle: skeletal, smooth and cardiac. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੋਣ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਰਲ ਟਿਸ਼ੂ। ਨਿਊਰਲ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ, बॉडी इज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम का, एक्साइटेबल सैल है, न्यूरोग्लियल सैल विच रेस्ट ऑफ द न्यूरो सिस्टम प्रोटेक्ट सपोर्ट न्यूरोन। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर दैन 1/2 of volume of the body tissue. When a neuron is suitably stimulated by electrical disturbance, the plasma disturbance is generated swiftly and travel along the plasma member ਦੇ ਨਾਲ चलती है। सो न्यूरोग्लिया टिश्यू दसिया है, एक्सोन बॉडी ਤੇ जो projections ने here like these are the dendron. Arrival of the disturbance ending output zone and trigger the event may cause stimulation and inhibition of the adjacent neuron and other cell.
सो न्यूरन के बारे तुहानूं वीडियो मिल जाएगी। ये सिर्फ एक थोड़ा जिहा इहदे विच ओवरव्यू दस्सिया, इन्नी डिटेल नहीं दसी। सो इहदे विच तुसीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आएगा। उसदे बाद नर्वस सिस्टम दे विच तुहानूं एपिडेमल सैल, एस्ट्रियोसाइट्स, ये सैल जो मेन ये आते हैं। न्यूरोन, ये टाइप्स ने बाईपोलर, मोनोपोलर, सूडो यूनीपोलर, ये टाइप सारे हैं ने। यदि मैं डिटेल दे फ्रेंड्स वीडियो पाई है, तुसीं देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन च लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों नैक्सट जो है साडे ऑर्गन सिस्टम ने अर्थवोम दे, कॉकरोच ते फ्रॉग दे। इन्होंने असीं अज वीडियो में 2 सैक्शन च डिवाइड करांगे ताकि तुहानूं समझ आ जाए, ज़्यादा वीडियो हौच पौच ना होवे। तो ज़्यादा लेंथी जो चैप्टर होएगा असीं उन्हें 2 च डिवाइड करांगे। थैंक यू वेरी मच। इहदा जो पार्ट 2 है उहदे वास्ते कनैक्ट करो, असीं शाम नूं अपलोड करदे हां जी। थैंक यू वेरी मच।